प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और मेरे चैनल पर बच्चों प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में आपके लिए 10वीं कक्षा के गद्य है, पद्य है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। बहुत उपयोगी वीडियोज़ है। इससे भी पहले 20 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप ज़रूर से देखना है। चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब करने के लिए न भूलना है। और जैसे यह तो प्रैक्टिस सीरीज़ है बच्चों, और यह तो प्रैक्टिस सीरीज़ से पासिंग पैकेज के लिए है, लेकिन मैं पासिंग पैकेज नहीं करता हूँ, क्योंकि आप पासिंग पैकेज कहा देने से आप सोचते हो कि हाँ यही प्रश्न आएगा और इतना रट दिए तो इतना हो गया तो हुआ। लेकिन आप पासिंग पैकेज के पीछे मत पड़िए बच्चों, ओके। क्योंकि पूरी तरह से तैयारी कीजिए, लेकिन सफलता में कोई शॉर्ट ट्रिक पासिंग पैकेज नहीं रहता है। सफलता के लिए कठिन परिश्रम होती है बच्चों, हार्ड एफर्ट करना पड़ता है, ओके ठीक है। इसलिए और चले मैं यहाँ पर दो क्वेश्चंस बताता हूँ, टू द पॉइंट बताता हूँ। है संभावना है, लेकिन मैं इसे पासिंग पैकेज नहीं करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। इससे द्वारा और भी आपको करना है काम बच्चों, ठीक है। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸರಣಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3ಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲ 3 ಪಾಠಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ प्रेरणार्थक क्रिया, संधि ಮತ್ತು समास। बच्चों आज के जो इस वीडियो में ना मैं पूरी तरह से आउट ऑफ 3 अंक आपके लिए हासिल करने के लिए मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ। उसमें पहला प्रश्न है प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरा है उसमें संधि है, और बाद में है बच्चों समास है, ओके। और इन तीनों के बारे में ही ज़्यादातर हम जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे बच्चों। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು 3 ವ್ಯಾಕರಣ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ, ಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಸ. ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು 3ಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೊದಲು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2019ರಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ನ में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द है. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗದ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅಂತ್ಯವು ಆನಾದಿಂದ ಅಂತ್ಯವಾದರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಾನಾದಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮ. ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ ಇತ್ತು, ಪಡಾಯಿ ಇತ್ತು, ಪಡಾನ ಇತ್ತು, ಪಡವಾನ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮಕ್ಕಳೇ पढ़ाना। बच्चों आप सभी को पता है प्रथम प्रेरणार्थक शब्द में आना होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द में वाना से अंत्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्नों के स्वरूप को हम समझ लेना है, क्योंकि उससे आसान होता है कि उत्तर देने में। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है, उसमें 4 शब्द में से प्रथम प्रेरणार्थक शब्द को चयन कर वहाँ पर लिखना था, ठीक है। और उसी प्रकार दूसरा प्रश्न में ही उसी स्वरूप का है बच्चों, वहाँ पर भी निम्न में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया शब्द को पहचानना था। वहाँ पर भी था लिखता, लिखाना था, लिखावट था, लिखवाना था। ये जून 2019 के लिए 1 अंक के लिए प्रश्न थे. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಖಾನ, ಆನಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಲೀಕ್ ಇತ್ತು, ಲಿಖಾನ ಇತ್ತು, ಲಿಖಾವಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಲಿಖ್ವಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದು ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ सेट क्वेश्चन पेपरदಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. बच्चों यहाँ पर एक दो प्रश्न देखेंगे कि जो मंडली द्वारा 2020 में चलने वाली नई पैटर्न की प्रश्न पत्रिका पर 2 प्रश्न दिया है। सुनना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया शब्द क्या है? वहाँ पर ही उन्होंने प्रश्न दिया है कि बच्चों सुनना का प्रथम प्रेरणार्थक शब्द क्या है? क्या होगा बच्चों उसका उत्तर? सुनाना होगा। उसी प्रकार भी यहाँ भी प्रश्न पूछा गया कि देना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया शब्द क्या है? अच्छा, देना का क्या होगा बच्चा? दिलाना, क्योंकि ए है, ए तो दीर्घ स्वर है, ए और ए को क्या करना है कि रुस्व में बदलना है। फिर द को ए है, फिर द को रुस्व में बदलने से ई होगा। सो देना, दिलाना। इस प्रकार 2 स्वरूप के प्रश्न आपके लिए पूछा जाता है। पहले 4 शब्द में से प्रेरणार्थक शब्दों को पहचानना और क्रिया शब्द देते हैं, और वही क्रिया शब्दों को आपको प्रथम प्रेरणार्थक, ज़्यादातर प्रथम प्रेरणार्थक शब्द है
और शायद मुझे लगा है यहाँ पर एक थोड़ा इम्पोर्टेंस मुझे लगा है बच्चों, और इस बार आने की संभावना पर मैं यहाँ पर स्टार मार्क लगा दिया हूँ। तो देखो पहला है बच्चों उठना है, उठना का उठाना उठवाना। उसी प्रकार दूसरा है चलना चलाना चलवाना। और जागना जगाना जगवाना। ज को आ के प्रत्यय है बच्चों, दीर्घ स्वर है उसमें जागना हुआ, ये जगाना जगवाना हुआ। उसी प्रकार जीतना, ज को बड़ी की मात्रा बच्चों, ये हुआ जीतना जितवाना, छोटी की मात्रा। उसी प्रकार खेलना है, एक ही मात्रा, क्या भाई बदल लेना है कि रिस्व में खेलना का हुआ खिलाना खिलवाना। और अंत में बच्चों बैठना है, आई की मात्रा है, वहाँ पर भी आपको ई की मात्रा लगाना है, बैठना का बिठाना बिठवाना। बच्चों इसी एक 4 शब्दों के बारे में आपको पहचान लीजिए, क्योंकि दीर्घ हुआ तो रुसु में बदलना है। और शब्दों की जो स्वरूपी है 4 शब्द है, उसमें प्रथम प्रेरणार्थक शब्द पूछा गया था, नहीं तो आपके लिए क्रिया शब्द देते और उस क्रिया शब्द के लिए प्रथम प्रेरणार्थक शब्द को पहचानने के लिए एमसीक्यू में पूछा गया था। ये था बहुत ही आसान से कंटेंट था बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया। मुझे भरोसा लगा कि आप सभी कुछ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया शब्द हो या प्रेरणार्थक क्रिया शब्द के बारे में समझ गए। इसके डिटेल्स वीडियो में और भी अपलोड करूँगा, लेकिन अभी ये तो प्रैक्टिस सीरीज़ पर है बच्चों, ठीक है। और चलेंगे बच्चों, सेकंड कंटेंट है संधि पर है, और संधि में भी प्रश्नों के स्वरूप पहले देख कोशिश करेंगे। अत्यंत शब्द में संधि है। सो पहले उन्होंने दिया है कि अत्यंत शब्द किस संधि के लिए उदाहरण है, और ये तो जून 2019 में 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है बच्चों। अत्यंत तो यन संधि के लिए उदाहरण है, जो य व र होते हैं ना, वो सभी यन संधि के ही होते हैं। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा गया बच्चों जून 2019 में, महोत्सव किस संधि के लिए उदाहरण है। महोत्सव भी होगा बच्चों गुण संधि, यहाँ पर ओ की मात्रा आ गया ना गुण संधि में। इस प्रकार हम आसान से कह सकते हैं कि संधि और समास के बारे में पहचानने के लिए गुण संधि में पहचान लेके क्या क्या है बच्चों, वहाँ पर आप सभी को भी पता है कि गुण संधि में ए ओ अर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गजेंद्र है, महोत्सव है, सप्तर्षि, ये सभी गुण संधि के ए ओ अर होते हैं, ठीक है। और आगे चलेंगे बच्चों, मनवंतर शब्द किस संधि के लिए उदाहरण है। मनवंतर शब्द किस संधि के लिए उदाहरण है, ये तो नए सेट क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था बच्चों। ये भी यन संधि के लिए उदाहरण है। मैं आपको बताया कि य व र के बारे में, य यानी अत्यधिक हुआ, व यानी मनवंतर होगा, र यानी पितराज्ञा। इस प्रकार य व र हुआ तो शब्द में उसका प्रयोग हुआ तो आपको पहचानने की ये यन संधि है। और आगे बच्चों अत्यधिक, मैं आप अत्यंत है ना उसी प्रकार का, अति प्लस अधिक अत्यधिक होता है, ये भी यन संधि के लिए उदाहरण है। यानी शब्द देते हैं और शब्द में आपको क्या करना है कि बच्चों संधि को पहचानना है। फिर मैं यहाँ पर आज लाया हूँ इस साल के, मुझे संभावना लगा कि इस 8 प्रश्नों पर देखो। पहला है बच्चों गिरीश है, गिरीश में र को बड़ी की मात्रा आया है, इसलिए यह हुआ दीर्घ संधि। विद्यालय है, यहाँ भी आ है और यह भी हुआ दीर्घ संधि। महेंद्र है, एक की मात्रा है, गुण संधि हुआ। वार्षिकोत्सव क के लिए ओ की मात्रा है, वो भी गुण संधि हुआ। और उसी प्रकार है बच्चों महर्षि है, क्या हुआ महा प्लस ऋषि। बताओ बच्चों, मैं पहले आपको बता दिया महा प्लस ऋषि हुआ। महर्षि ए भी य यानी ए भी गुण संधि के लिए है। और जैसे बच्चों सदैव है, सदा प्लस दैव, सदैव आई और अव के मात्रा हो तो वहाँ पर हुआ वृद्धि संधि हुआ। और नयन पावन है, यानी आपको पहचाने कि अय आय अव आव, ये शब्द सभी अयादि संधि है। और बच्चों मुझे लगता है इस बार जो प्रश्न हुआ ना, प्रश्न आने की संभावना है वो दीर्घ संधि पर लगता है, दीर्घ संधि, क्योंकि यन संधि तो 2 बार पूछा गया है और जैसा गुण संधि भी पूछा गया है, और लगता है कि इस बार यन दीर्घ संधि की संभावना है। यह प्रकार संधि के बारे में प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे बच्चों। अब देखेंगे बच्चों हम समास पर देखेंगे, ये समास के लिए कौन कौन से प्रश्न है लास्ट ईयर में। पहला है बच्चों प्रश्न है जलप्रपात डैश समास के लिए उदाहरण है। और जल समास होता है बच्चों तत्पुरुष समास के लिए उदाहरण होता है जल की प्रपात जलप्रपात, ओके। और उसी प्रकार द्विगु समास के लिए उदाहरण, वहाँ पर 4 शब्द दिए थे। द्विगु समास के लिए छटना था, जून में पूछा गया है। ये हुआ दोपहर यानी 2, संख्यावाचक विशेषण है ना बच्चों, ये भी द्विगु समास के लिए उदाहरण था। और उसी प्रकार भी सेट 1 में नए पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में भी दोपहर पूछा गया है, और दोपहर भी कौन सा द्विगु समास के लिए उदाहरण है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, और ये तो तत्पुरुष समास के लिए उदाहरण था।
बच्चों देखो 2 साल भी क्या हुआ है कि तत्पुरुष समास के बारे में ही प्रश्न आए हैं तत्पुरुष। और इस बार हो सकता है कर्मधारय या बहुव्रीहि पर भी आ सकते हैं। कहीं मैं आपको इम्पोर्टेंट लास्ट के बारे में बताता हूँ, कहीं थोड़ा सा 1-2-3 शब्दों को बारे में आपको याद रखना है, संधि और समास में कौन कौन से शब्द है मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। लेकिन वही शब्द है ना बच्चों, वो थोड़ा सा क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है, पूर्ण अंक हासिल करने के लिए थोड़ा सा वहाँ पर आपको तकलीफ़ होता है, थोड़ा है ट्रिक से मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। बच्चों ये 9 शब्द है ना, ये 9 शब्द में से मुझे संभावना लग रहा है इस बार, इसलिए मैं प्रैक्टिस पर रखा हूँ। आजन्म में अव्ययी भाव समास है बच्चों, यथासंभव में भी अव्ययी। यहाँ पर पहला शब्द है ना बच्चों, यहाँ पर आ हुआ और यहाँ पर यथा हुआ, ये दोनों ही अव्यय है। उसी प्रकार बच्चों कनकलता है, कनकलता यानी ये तो हुआ कर्मधारय समास है, यानी वहाँ पर पहला शब्द होता है विशेषण होता है और दूसरा विशेष यानी संज्ञा भी होता है। और उसी प्रकार ये मुखचंद्र है, और मुखचंद्र भी कौन सा समास है बच्चों, कर्मधारय समास है, मुख रूपी चंद्र कहते हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग के लिए प्राप्त होता है, स्वर्ग को प्राप्त है, और ये तत्पुरुष समास है। और देश प्रेम यानी देश के लिए प्रेम, देश प्रेम है, और ये भी तत्पुरुष समास के लिए उदाहरण है। त्रिधारा है, त्रि संख्यावाचक विशेषण है, ये द्विगु समास हुआ। पाप पुण्य में बीच में योजक चिन्ह है, और ये द्वंद्व समास हुआ। और घनश्याम है, ये दोनों का भी शब्द नहीं, अन्य पद का शब्द प्रयोग होता है, और यह हुआ बच्चों बहुव्रीहि समास। बच्चों देखो मैं एक 3 शब्द संधि में 3 शब्द बताता हूँ, और समास में 1-2 शब्द बताता हूँ, ये पर आप याद रखना है। देखो मनोरथ शब्द है ना बच्चों, मनोरथ ज़्यादातर छात्र कहते हैं कि ओ की मात्रा आ गए तो गुण संधि, लेकिन मनोरथ शब्द है बच्चों विसर्ग संधि है। मनोरथ कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। उसका जो ये होता है कि विच्छेद होता है मनः प्लस रथ। और उसी प्रकार विसर्ग संधि के लिए और 1-2 शब्द याद रखने की, पुरोहित। देखो पुरोहित शब्द भी गुण संधि नहीं होता है, ये भी विसर्ग संधि होता है, पुरः प्लस हित पुरोहित। लास्ट में है बच्चों नीरस, सो नीरस भी है विसर्ग संधि है, उसकी जो विच्छेद होती है नी प्लस रस, नीरस। मनोरथ, पुरोहित, नीरस, ये तीनों शब्द ही विसर्ग संधि के लिए उदाहरण है। और जैसे ही मनोरथ पुरोहित एक गुण संधि नहीं होगा, और नीरस भी दीर्घ संधि नहीं होगा। ये संधि में लिए 3 शब्द आपको याद रखना था बच्चों। अब थोड़ा सा मैं समास में भी कई ऐसे ही शब्द है, 2 शब्द है। पहला है बच्चों त्रिनेत्र शब्द है, त्रिनेत्र में संख्यावाचन हुआ, लेकिन त्रिनेत्र हमें शिव को भी कहते हैं ना, इसलिए हम शिव को कहते हैं, इसलिए हुआ ये भी अन्य पद प्रधान यानी इसका अर्थ हुआ शिव। त्रिनेत्र किसको कहते हैं, शिव, और इसलिए यह हुआ समास बहुव्रीहि समास हुआ बच्चों। क्या हुआ, बहुव्रीहि समास। और उसी प्रकार और एक शब्द है बच्चों दशानन, हम रावण को दशानन कहते हैं ना, और इसलिए दशानन शब्द भी है बहुव्रीहि समास। आपको पहले वहाँ पर MCQs में जो ऑप्शंस देखना है, ऑप्शंस देने के बाद आपको टिक लगाना है। पहले उसमें त्रिनेत्र में बहुव्रीहि नहीं तो द्विगु लगाओ, या नहीं उसमें द्विगु नहीं है तो बहुव्रीहि को लगाना है। दशानन भी उसी प्रकार के, दशानन में द्विगु नहीं तो बहुव्रीहि को टिक करना है। और जैसे ही दशानन में द्विगु है बहुव्रीहि नहीं है तो आपको द्विगु को टिक करना है। फिर भी ये 5 शब्द इंपॉर्टेंट थे, मनोरथ, पुरोहित, विसर्ग संधि है, और त्रिनेत्र, दशानन बहुव्रीहि समास के लिए उदाहरण है। यह था बच्चों इंपॉर्टेंट MCQs के, और भी लेकर आता हूँ। ये ज़्यादातर ज़्यादा आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर होगा, और आपकी पढ़ाई तो मजबूरी करेगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಸಂಧಿ ಸಮಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೌಟ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳವರೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.